Hello, hi, good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. We are here to help you, guide you, motivate you, and discuss about our knowledge sharing series, our festive special for this week. I hope you all are as excited as I am to share a lot of information, lot of new tips, tricks for today's session. Today's session is going to be about immunity boosting factors, what all we need to do specifically in things related to heart friendly diet or things related to boosting your immunity, or what are the tips, tricks, information you need to ensure that we have in our day to day routine to have our blood sugars and your weight under control. All right, let me greet and speak to each one of you. Good evening, Mr. Chakravarti. Thank you so much for joining us this week. Hello, Ashok ji. Good evening. Thank you for joining us. Hello, Mr. Sahil. I see you have newly joined the AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for your active participation. हेलो कालीचरण शर्मा जी, कैसे हैं आप? आई होप आपकी तबीयत ठीक है, आपकी ब्लड शुगर अभी अंडर कंट्रोल है. हेलो मिस्टर यादव, गुड इवनिंग. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Hello, Mr. Murugandam. Thank you for joining us today. Hello, Mr. Shaktidhar Singh. I hope you're doing well. Your blood sugars are under control. Hello, Praveen ji. Good evening. Thank you for joining us today. Hello, Nayan. I hope आपकी तबीयत ठीक है, आपकी ब्लड शुगर अभी अंडर कंट्रोल है. Hello, Pramod ji. Good evening. Thank you for joining us today. It is great to see our entire AccuCheck Wealthy family join us for today's session. Today's session is going to be a series of information wherein I am going to share some heart-friendly diet, and that is specifically for diabetes. मुझे आपके सारे हेल्थ कोचेस से ये काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन में चाहिए, which is English and Hindi. So don't worry, I am here to help you and guide you, and we will speak about the most important factor for the current जर्नी. और जैसे हम देखते हैं हार्ट हेल्थ, अभी आप सोचेंगे हमें तो बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, हमारा वजन ज्यादा है, हमें डॉक्टर ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर डायबिटीज को कंट्रोल करने कहा है. ऐसे समय में इज इट गुड टू हैव कंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स? How is it that my heart is not going to be healthy in such situations? Don't worry, we'll discuss all of this information today. Just allow me a minute, I will share my screen. All right, coming to today's topic. Today's topic is unique in itself. We are going to discuss about heart friendly diet for diabetes. Yes. So what we currently see or what we currently know is that हार्ट कैसे इम्पैक्ट करेगा, या कौन सी चीजें हैं जो हार्ट के वजह से इम्पैक्ट होंगी. लेट अस सी दैट बिकॉज इट इज very very important to understand this, that a heart friendly diet will not only help you manage your heart to improve your heart health, but it will also help you in managing your blood sugar levels, managing your weight. Okay, so let us see what is it all about and what is it that we are going to discuss today. Well, basically we are going to speak about the benefits and key nutrients of a heart friendly diet, whole grains and healthy fats, lean protein and limiting added sugars, watching sodium intake and portion control, heart friendly meal planning, reading labels for heart healthy cooking tips, and then we come to your queries. All right, let us come to the first topic, the benefits and key nutrients of a heart friendly diet. You all must have heard this from your doctor कि आपको आपके हार्ट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी हाई लेवल की डायबिटीज है.
तो इस पे आपके हार्ट को भी इम्पैक्ट हो सकता है। वो किस तरह से होगा, उसमें क्या होगा, या जो हार्ट फ्रेंडली डाइट वो कैसे करना है, क्या करना है, वील डिस्कस दैट। बट सबसे पहले देखते हैं उसके की न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और उनके बेनिफिट्स क्या है। ऑलराइट, बेनिफिट्स ऑफ अ हार्ट फ्रेंडली डाइट: reduces the risk of heart diseases, improves blood sugar control, promotes overall health and well-being. की न्यूट्रिएंट्स फॉर हार्ट हेल्थ, अभी आपने ये तो समझ लिया कि किस तरह से वो बेनिफिट करेगा, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द की न्यूट्रिएंट्स, मतलब क्या क्या खाने से, कौन सी चीजें खाने में लेने से आपकी जो ये हार्ट की हेल्थ है वो कंट्रोल में रहेगी और जो सारे बेनिफिट्स हमने अभी डिस्कस किए वो आपको मिलेंगे। द मोस्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग that is essential nutrient for your heart health is fiber. Okay, so fiber basically aids in maintaining healthy blood sugar levels and reduces cholesterol. तो फाइबर कौन सी चीजों में है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सिर्फ कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खाने से डाइट में फाइबर नहीं मिलता। किसी भी प्रकार से अगर आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, दैट लीड्स टू helping you maintain your blood sugar levels and reduces your cholesterol levels, which in turn helps you increasing your fiber intake. Okay, तो किसी भी प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके अलग अलग फॉर्म्स आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी हमें ये नहीं करना है कि हम उनको ओवर कुक करें या किसी भी तरीके से उनको बहुत ज्यादा ऑयल में यूज करें, तो उसकी जो फाइबर की क्षमता है या फाइबर का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ऑल राइट, फाइबर इज ऑल्सो अवेलेबल इन लॉट ऑफ अदर फूड आइटम्स, लाइक high protein foods have some amount of fiber. Your complex carbohydrates जैसे रागी, jowar, bajra, whole wheat flour, all of these have some amounts of fiber present in it. All right, let's move to the next key ingredient for managing your heart friendly diet and controlling your blood sugars. Omega 3 fatty acids help lower triglyceride level and reduce inflammation. Okay, so omega 3 fatty acids, सबसे important हमारे लिए ये जानना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कौन से फूड्स में प्रेजेंट है। very very important, they are highly present in dry fruits, they are present in a lot amount of fish and fish products. Okay, and they help lower triglyceride levels and reduce inflammations. Antioxidants, antioxidants are those foods basically that help protect against damage caused by free radicals. बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स एग्जैक्टली क्या है और किस तरह से हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, तो लेट मी टेल यू ऑल, हार्ट हेल्थ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर डायबिटीज। ठीक है, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन सी चीजों में अवेलेबल है? विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे गुआवा, papaya, lemon, lime, orange, pineapple, all of these fruits have good amount of nutrients. They are rich sources of fiber. They also have a sufficient amount of vitamin C in its natural form, and they also help you reduce your blood sugar levels. Basically आपकी जो डायबिटीज है उसको नियंत्रण में रखने में आपकी मदद करेंगे। ओके, तो ये सारे फल आपके सेवन में रेगुलरली होने चाहिए। अभी काफी बार आपने ये सुना होगा कि आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट है या आपके जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया होगा केला नहीं खाना है, या आपको चीकू नहीं खाना है, सपोटा नहीं खाना है, या आपको काफी सारे मात्रा में पाइनएप्पल्स, कस्टर्ड एप्पल्स ये नहीं लेने हैं। तो इज इट ओके इफ आई कंज्यूम इट वंस इन अ वाइल? तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूंगी। Do not consume one fruit at a time
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बोल ऑफ फ्रूट्स लेंगे, दैट वोंट इम्पैक्ट योर ब्लड शुगर्स अ लॉट। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मिक्स बोल ऑफ फ्रूट्स, उसमें आप 2-4 पीसेस बनाना के ऐड करें, या उसमें आप 2-4 पीसेस पाइनएप्पल, कस्टर्ड एप्पल के ऐड करें, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट आपको पूरा बनाना नहीं लेना है। अगर आप लेते भी हैं तो वंस और ट्वाइस इन अ वीक एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक या एज अ इवनिंग स्नैक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके साथ आपको फल को कंबाइन नहीं करना है। आपके जो बीच के टाइमिंग्स है, इसका मतलब मान लीजिए आपने नाश्ता सुबह 9 बजे किया है, आपने लंच 1 बजे किया है, और आपने रात का खाना 8 से 9 के बीच में किया है, 9 से 10 के बीच में किया है, तो ये 3 मील्स इंपॉर्टेंट मील्स है। इनके बीच के जो टाइम जोन्स है, जैसे 11 से 12 के बीच, या दोपहर में 2 से 4 के बीच, या फिर 4 से 6 के बीच, इस समय पे आप एक फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। वो आपके हार्ट के लिए काफी हेल्दी होगा, नंबर 1। Number 2, it will help manage your blood sugar levels. Number 3, it will help you manage your weight as well. Okay. And number 4, it won't fluctuate your blood sugar levels. बहुत जरूरी है, इस पे जरूर आपके हेल्थ कोचेस के साथ डिस्कस कीजिए। मी एंड माय टीम आर इक्विप्ड टू हेल्प यू क्लिनिकली इम्प्रूव योर ब्लड शुगर लेवल्स। हमारी जो टीम है पूरी तरीके से ट्रेंड है, उनको सिखाया जाता है डे ऑन डे किस तरह से एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच आपको प्रोवाइड करना है। यस, जिस तरह से हम फाइबर की बात कर रहे थे, फाइबर रिच फूड्स बीन्स है, आमंड्स है, एवोकाडो, रास्पबेरी, गुआवा, ग्रीन पीस, ब्रोकली, ऑरेंजेस, तो ये सारे जो फ्रूट्स है, अगर आपको ऐसे लगे कि इनमें से कोई फ्रूट्स आपके रीजन में काफी एक्सपेंसिव मिलते हैं या आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है, please reach out to your health coaches and ask them options. What are the alternative things which are available, which can help you improve your blood sugar levels. It is very important, please ये समझिए, छोटी छोटी चीजें करने से आपकी रूटीन में ओवरऑल प्रोग्रेस होगा, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप ये सोचेंगे एक फल एक दिन में नहीं खाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? नो, you need to be consistent, you need to do it every single day. Only then there will be a drop in your blood sugar levels and there will be a constant improvement in your heart health. All right, let's move ahead. होल ग्रेन्स एंड हेल्दी फैट्स, अभी आपने काफी बार जो डॉक्टर की न्यूट्रिशनिस्ट होती है या आपके डॉक्टर होते हैं उनसे ये सुना होगा कि आपके खाने में फैट का सेवन या तेल या घी का सेवन कंट्रोल्ड मात्रा में करना है, राइट। तो मैं उसमें भी आपको डिफरेंस समझा रही हूँ कि आपके हार्ट के लिए कौन से ऑयल्स अच्छे हैं, आपके हार्ट के लिए कौन से ऑयल्स आपको लेने चाहिए, जिससे अगर आपको डायबिटीज है भी तो उस पे हार्ट पे इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। सबसे पहले ये समझिए कि हेल्दी फैट्स आपके शरीर के लिए, आपके ब्लड शुगर के लिए, आपके हार्ट के लिए काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो घटाते हैं और आपकी हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, आर्टरी इश्यूज, ये सारी चीजों को कम करते हैं, ठीक है। अभी आप ये जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आपकी जो फैट्स है वो अच्छी है, जिसके आपका हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होता है और जिसके वजह से आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी होगी। तो लेट मी टेल यू, हेल्दी फैट्स लाइक एवोकाडोस, नट्स, मतलब हमारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, और ऑलिव ऑयल, ये जो है ये काफी हेल्दी फैट्स है। अगर आप सोचेंगे ऑलिव ऑयल हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मली इंडियन कुकिंग में ऑलिव ऑयल इज नॉट
आइडियली इजी टू यूज, तो उस समय में क्या कर सकते हैं? उस समय में दो तीन ऑयल का कॉम्बिनेशन लेके आप एक यूनिक ऑयल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी टिप है, सिंपल टिप है, जरूर ट्राई कीजिए घर पे, एंड प्लीज लेट योर हेल्थ कोचेस नो अबाउट इट, हाउ इज इट एंड हाउ इज इट हेल्पिंग यू इम्प्रूव योर हार्ट हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तीन तरह के ऑयल्स आपको लेने हैं। कोई भी तीन आइटम्स हो सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल, ओके, सनफ्लावर ऑयल, ओके, एंड ग्राउंडनट ऑयल। ये तीन ऑयल्स को कंबाइन कीजिए इन इक्वल प्रोपोर्शन, 1:1, एंड वो ऑयल को आप उस ऑयल को आप बेसिकली यूज कर सकते हैं for your day to day intake. All right. Okay. Great. Let us understand what are healthy and unhealthy fats. Okay. Not all fats are created equal. Fats play a significant role in cholesterol levels and your overall heart health. Okay. Saturated and trans fats can raise bad cholesterol levels in your blood. Monounsaturated and polyunsaturated fats can help lower bad cholesterol levels and are beneficial as part of heart healthy diet. All right. तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि हार्ट के लिए कौन से रेसिपीज अच्छे हैं। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
Thank you so much. I hope you like these recipes. I will also share this link with your coaches so that you all know where were these recipes picked up from. Also, let's come back to our topic, heart friendly diet, and what all does it have as a part of our discussion today. Sure. Thank you so much for all your feedbacks on the videos. These recipes are really simple, less than 10-15 minutes, जो easily आप घर पे बना सकते हैं. एंड अगर आपने केयरफुली देखा होगा तो ये सारे जो रेसिपीज है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल होते हैं. ठीक है. तो प्लीज़ आप एक बार ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए. और आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आपके हेल्थ कोचेस को मैसेज करना मत भूलिएगा. Thank you for your feedbacks on the videos. I'm really grateful. Thank you so much. I cannot respond to each and every message. We still have some part of information to share. So let us go back to our discussion and continue on it. All right. Just give me a minute. यस. हार्ट हेल्थ के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एंड वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉचिंग योर सोडियम इनटेक. ओके. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोडियम इनटेक? इसका मतलब है जो भी सॉल्ट रिलेटेड रेसिपीज है या जो सारे रेसिपीज में सॉल्ट अवेलेबल है या सॉल्ट एज अ प्रेजर्वेटिव यूज किया है, वो सारे रेसिपीज आपको खाने में थोड़े से रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे. व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. हाई सोडियम इंटेक इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीजेस. ओके. कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, उसके फूड लेबल्स आपको चेक करने हैं और उस पे सोडियम कितना इंटेक है वो हमको बताना है. ओके. चूजिंग लो सोडियम ऑल्टरनेटिव्स एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ सॉल्ट इन कुकिंग एंड सीजनिंग. हमें इंडियंस को काफी आदत होती है, इन वॉट एवर रेसिपीज वी मेक, इन वॉट एवर कॉम्बिनेशंस वी मेक, we keep adding pinch of salts in every intake. So we will have to ensure that we choose low sodium alternatives. ठीक है. जैसे काफी सारे लो सोडियम सॉल्ट्स अवेलेबल है मार्केट में. काफी सारे ऐसे सॉल्ट्स जो कुकिंग में यूज होते हैं, उनके क्वांटिटी में आप चेंजेस कर सकते हैं. ऊपर से जो हम टेबल सॉल्ट लेते हैं या ऊपर से जो हम सॉल्ट का इंटेक रखते हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. हमेशा सॉल्ट यूज करना जरूरी नहीं है. सॉल्ट के जगह पे आप बाकी सारे स्पाइसेस और हर्ब्स यूज कर सकते हैं. अ, कितना सोडियम खाने में लेना है या क्या लेवल आपके सोडियम कंटेंट का होना चाहिए, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे. बिकॉज अगर मैं आपको रफली बताऊं तो इन एन एंटायर डे 2 टीस्पून, टीस्पून में होते हैं 5 ग्राम. ठीक है. तो दिन में आपको 8 से 10 ग्राम अलाउड है. तो ये सोचिए, जो बिस्किट्स, कुकीज, सारी चीजें, रेडी पैक प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं, उसमें भी काफी सारा सॉल्ट का अमाउंट होता है एज अ प्रेजर्वेटिव. ठीक है. तो हमको उस पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पोर्शन कंट्रोल. ओके. Practicing portion control helps manage blood sugar levels and maintain a healthy weight. Use smaller plates and bowls to control portion sizes. Fill half of your plate with non starchy vegetables. Limit the intake of high calorie foods and beverages. Okay. ओके. लेट्स मूव अहेड. पोर्शन कंट्रोल तो आप सभी को पता है. जो एक सर्विंग आप ले रहे हैं, उसकी सेकंड सर्विंग हमको नहीं लेनी है. जो भी आप खाना पसंद करते हैं या जो भी आप खा रहे हैं, उस पे पोर्शन पे कंट्रोल रखना हमारे रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ हार्ट फ्रेंडली मील प्लानिंग. Include a variety of fruits and vegetables in your meals. Very, very important.
चूज लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन खाने में इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप काफी सारे दाल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप काफी मात्रा में नॉन वेज आइटम्स जैसे फिश, एग्स, चिकन, मटन, ये सारे आइटम्स आप ले सकते हैं। These contain good amount of protein और प्रोटीन आपके बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। ऑप्ट फॉर होल ग्रेन्स एंड लिमिट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जैसे मैदा, सूजी, आपको होल व्हीट फ्लावर जो छाना गया है, जिसका हस्क आपने पूरा निकाल दिया है, ये सारी चीजें रेगुलरली मत लीजिए। इसको किस अलग अलग तरीके से खाना है, क्या क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, ये आपको आपके कोचेस सिखाएंगे। प्लीज स्पीक टू देम, they will definitely guide you and help you understand your entire journey. All right, reading labels for heart health. Check the serving size to understand the portion size of the food. Pay attention to the amount of sodium in the product. Look for added sugars in the ingredient list. मतलब हमेशा ऊपर से नमक नहीं अवेलेबल होगा। कभी कभी क्या होता है, इन द फूड आइटम्स, ओके, एज अ प्रेजर्वेटिव सॉल्ट यूज होता है, एंड सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। इट इम्पैक्ट्स योर हार्ट नेगेटिवली। इसीलिए हमें काफी ज्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं लेना है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। हमने ये तो देख लिया हार्ट के लिए अच्छा क्या है, कौन से रेसिपीज बनाने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नाउ लेट अस लर्न हार्ट हेल्दी कुकिंग टिप्स। खाना बनाते समय या खाना लेते समय कौन से प्रिकॉशंस आपके डाइट में रखना जरूरी है। ओके, चूज कुकिंग मेथड्स दैट प्रमोट हार्ट हेल्थ। ठीक है, डीप फ्राइंग अवॉइड करना है और उसके जगह ग्रिलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ये चीज़ों को प्रेफरेंस देना है। इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्सेसिव सॉल्ट या सोडियम, उसके जगह पे आप स्पाइसेस, जैसे मार्केट में आजकल काफ़ी सारे स्पाइसेस मिलते हैं, जीरा पाउडर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ठीक है, फिर चाट मसाला, अलग अलग तरह के हर्ब्स, स्पाइसेस और उसके कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। सॉल्ट के जगह पे आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट एंड रिप्लेस योर डाइट। ओके, ऑल राइट, तो हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन जान ली है। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विज है। ओके, आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं, या कोई भी एक पर्सनल क्वेश्चन है जो आपके डाइट से, आपके हार्ट हेल्थ से रिलेटेड है, या डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशंस लेने बोले हैं, so please reach out to me or my team and we will definitely help you, guide you, and tell you how we can help you in your heart health. All right, the field is open for all your questions. Please let me know what all do you want to know from me. Please ask your questions in the chat box. काफी सारे responses आए हुए हैं. Good evening to all my lovely AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for all your greetings, all your feedbacks. I will definitely convey all of these messages. Thank you so much for the video responses. I will share the recipe video links with all of you. We have some questions. Let me speak to the individual members about it. Hello, Ashok ji. Good evening. Thank you so much for your active participation. Ashok ji is asking, you showed a bread recipe. The pesto in that looked good. Um, but in India, it contains a lot of salt and sugar. All right. So definitely, मैं आपको totally agree करती हूँ that in the Indian market, the bread and the bread substitutes which are present contain a lot of
salt and sugar, what to be done in that scenario? Simple है, वही पेस्तो आप अपने मल्टीग्रेन रोटी के साथ लीजिए, ठीक है. स्मॉल टिप हियर, इफ यू वांट टू मेक लाइक सम स्नैकी आइटम, जो रोटी आपकी है या मल्टीग्रेन आटा है उसकी थोड़ी थिक पराठे की कंसिस्टेंसी की रोटी बना सकते हैं. उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए आपके ग्रिलर पे या आपके तवे पे उसको थोड़ा हार्ड रोस्ट कर सकते हैं, और उस पे आप पेस्तो एंड देन वेजिटेबल्स लगा के वो इनटेक कर सकते हैं. आई होप दिस हेल्प्स. Hello, Vivek ji. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Sodium content is something which I will not be able to help you with, क्योंकि वो आपके बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आप अभी कितना सोडियम ले रहे हैं. एनीथिंग इन द रिड्यूस क्वांटिटी इज अ गुड चॉइस. ठीक है. तो अभी जैसे आप नॉर्मली 20 ग्राम सोडियम ले रहे हैं, उसका रिड्यूस करके अगर आप 10 ग्राम्स भी कर दे तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम हो सकता है. बट अभी कितना ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है हमको उसको रिड्यूस कितना करना है. ऑलराइट. हेलो शक्तिधर जी, गुड इवनिंग. थैंक यू so much for your feedbacks. I can see you're active participating today. Let me go through your question. I have issue of uric acid with diabetes. Please advise how to reduce uric acid. All right. So let me tell you, यूरिक एसिड एक ऐसी चीज है, अगर सही टाइम पे आपने कंट्रोल नहीं की तो दो चीजों पे इम्पैक्ट होता है. एक है आपकी किडनी, सेकंड है आपकी ब्लड शुगर लेवल्स एंड हार्मोन्स. ठीक है. तो यूरिक एसिड के लिए सबसे पहले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको आपको ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है. कितने क्वांटिटी में ले सकते हैं, उसके जगह पे क्या ले सकते हैं, स्पीक टू योर हेल्थ कोच. यूरिक एसिड फ्रेंडली डाइट अवेलेबल होते हैं, शी कैन गाइड यू ऑन दैट. ओके. बट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से कंट्रोल कीजिए. जितना कम आप ले मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उतना जल्दी आपका रिड्यूस होगा यूरिक एसिड. हेलो साहिल जी, आज आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. चपाती यूज करेंगे. आई कैन सी आपने कुछ क्वेश्चन डाला है. चपाती यूज करेंगे. अगर आप ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्रेड, तो डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन. एंड चपाती के जगह पे अगर आप स्टफ्ड पराठा भी यूज करें, विच इज अ स्टफिंग ऑफ पनीर एंड वेजिटेबल्स, दैट विल बी ग्रेट. Thank you, Pramod ji, for your feedback. I always feel delighted to help you, guide you, motivate you, not just me, but my entire team. Thank you so much for your feedback. Sure, I will send today's link through your health coach from my YouTube channel. Hello, Mr. Chakravarti. Thank you so much for your active participation. यस, खजूर आई अग्री इज अ स्वीट स्नैक, बट कितने क्वांटिटी में आप उसको यूज करते हैं उससे भी काफी इम्पैक्ट होता है. सी, इंस्टेड ऑफ शुगर और जैगरी और हनी, अगर आप खजूर यूज करते हैं इन 1 or 2 क्वांटिटी, दैट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ रियली वेल. उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसके आपकी ब्लड शुगर हाई नहीं होगी, उससे आपका डायबिटीज नहीं बढ़ेगा, but definitely it will give some sweet taste to your food, some sweet taste to your diabetes friendly sweets or your dessert. But reduce quantity में डालिए. पूरा बाउल भर के अगर आप खजूर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी शुगर बढ़ने वाली है. बट अगर 2 to 3 पीसेस लेंगे और वो आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज करेंगे, that won't impact your blood sugar levels if eaten in a controlled form. Sure, today's link would be shared with all of you. Thank you so much for your feedback.
Hello, Shaktidhar Singh ji. Thank you so much for your feedback. He has a question. I'm taking milk with roti in dinner. Shall I continue with milk or not? Thanks for your reply. Okay. Thank you so much for acknowledging my responses, Shaktidhar जी. मुझे सबसे पहले तो ये डाउट है कि सिर्फ मिल्क और रोटी आप क्यों ले रहे हैं? क्या आपकी कोई ट्रीटमेंट दांतों की चल रही है या आपको फूड च्यू करने में प्रॉब्लम होती है? अगर ऐसा है तो आपके डॉक्टर के साथ चेक कीजिए, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ ये समझिए कि सिर्फ मिल्क और चपाती से नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील. ठीक है, उसके रोटी के साथ कटोरी दाल या फिर बोल ऑफ वेजिटेबल, बोल ऑफ सलाद इज अ मस्ट. अगर आपको कुकिंग में प्रॉब्लम है तो रेडीली ऑप्शंस भी अवेलेबल है. प्लीज चेक कीजिए. Instead of taking wrong diet, increasing your blood sugars, and then going to insulin and increasing your complications in your diabetes management will impact your health very much. तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए. सिर्फ दूध पी के नहीं सोना है, खाली पेट नहीं सोना है. हम टैबलेट्स ले रहे हैं, हम शुगर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके लिए खाली पेट सोना बिल्कुल ठीक नहीं है. और सिर्फ रोटी और चपाती से नहीं होगा. आपको एक प्रॉपर मील, जैसे 2 चपाती या 1 चपाती, उसके साथ 1 कटोरी सलाद, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, अगर उसमें पॉसिबल है तो एक कुछ करी. लेकिन दोनों चीज़ें साथ में मत लीजिए. राइस भी और रोटी भी एक ही प्लेट में मत लीजिए. अगर ले भी रहे हैं तो उसका पोर्शन कंट्रोल याद रखिए. ओके, किस तरह से लेना है, कैसे लेना है, स्पीक टू योर कोचेस, दे विल गाइड यू. All right, let me go to the other questions. Sahil ji, thank you so much for your active participation. Sahil ji wants to know, for oats smoothie we use apple as well. Can I have apple in oat smoothie? Fruit juices are to be avoided. Yes, I completely recommend this. Oats smoothie is a great option. दो चीजें याद रखनी है. एक तो कुछ भी शुगर का नहीं डालना है उसमें. जैगरी, हनी, शुगर, टेबल शुगर कुछ ऐड नहीं करना है. दूसरा, एप्पल डाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन उसमें कुछ फ्लेवर के लिए मत डालिए. अगर आपको कुछ टेस्ट बड्स के लिए चाहिए तो आप सिनेमन या दालचीनी पाउडर या फिर आप जो सौंफ है वो डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा टेस्ट के लिए चाट मसाला या थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं. दैट इज समथिंग यू कैन हैव. यस, फ्रूट जूसेस आर टू बी अवॉइडेड, क्योंकि फ्रूट जूसेस से आपका पूरा फाइबर निकल जाता है, क्योंकि हम उसको स्ट्रेन करते हैं और सिर्फ नीचे का पानी यूज करते हैं एज अ जूस. करेक्ट. सो इंस्टेंट स्मूदी इज अ बेटर ऑप्शन. बेस्ट ऑप्शन है पूरा फ्रूट खाइए. वाई डू यू नीड एनी काइंड ऑफ जूस? ओके. और अगर कोई च्यूइंग रिलेटेड इश्यूज है या आप पूरा फ्रूट चबा नहीं सकते, तो उस समय पे आप उसको फाइन पीसेस में करके या सिर्फ ग्राइंड करके विदाउट स्ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच प्रमोद जी फॉर योर फीडबैक. इट डेफिनेटली हेल्प्स मी डू बेटर विथ माय टीम. I'm taking vegetables, but for uric acid I'm asking. Yes, शक्तिधर जी, यूरिक एसिड के लिए ही मैंने आपको बोला. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर, दूध के कोई भी प्रोडक्ट्स खाने में परहेज कीजिए. आपको उसको टोटली परहेज करना है. जितना ज़्यादा आप कम से कम क्वांटिटी में लेंगे उतना जल्दी यूरिक एसिड कम होने में हेल्प होगी. Excuse me. Hello Murugan ji, good evening. Thank you so much for joining today. What juice can I have? I'm so sorry you would not be able to have juice. Once in a week you can have as a taste maker.
But if you ask me, the best option is a bowl of fruits, because that is something which will help you improve your blood sugars, your weight, your reduce your blood sugar fluctuations. All the vegetable soups you can have, बस आलू रेगुलरली नहीं ले सकते हैं। आलू आपके सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो आलू कभी कभार लीजिए, बाकी सारे वेजिटेबल सूप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो टिप्स फॉलो कीजिए। एक, बना के रख के उसको बाद में नहीं लेना है, जब आप लेने वाले हैं उसी समय या फिर 2-3 घंटे पहले बना के आप ले सकते हैं, बट डोंट make it and store it for 2-3 days and then have, that will create a problem. No worries, I hope I helped you. Thank you so much. Hello Yadav ji, good evening. आपने पूरा डाइट प्लान मुझसे पूछा है, आई एम सो सॉरी, I would not be able to help you, but don't worry. I have my health coaches who can guide you, motivate you. Please speak to your health coach. All you need to do, open your chat box, send a hi, and tell your coach to provide you a diet plan, and she will tell you the further process. There are few more questions. Please allow me a minute. For few questions which are asked to me, I want to reply it as a answer together. What should be in my diet? What all breakfast options should I have? What all meals should I take? How many meals should I take? Um, my cholesterol is high. How should I control it? What all should I eat to control cholesterol? What all should I eat to control my kidney problems? ये सारी चीज़ें वन लाइनर आंसर में नहीं दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम लगेगा। आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही हम ये सी, बिकॉज दीज आर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको एक टिप बता दूंगी और उससे इमीडिएटली आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होने वाला है। आपको एक प्रॉपर इन डिटेल प्रोग्राम चाहिए फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। सो टॉक टू योर कोचेस, दे विल टेल यू what are the next steps on moving towards the program, and we can definitely help you out for this. All right. All right, with this, we come to the end of today's session. In case you have any more questions or you have any suggestions related to topics or information, please do write back to us through our health coaches so that they can reach out to me and tell me on what are the best possible things we can do for you. Thank you so much to all my lovely AccuCheck members. Next week, I'm bringing you a series of festive special knowledge sharing series. Stay tuned because I'm going to get a lot of new speakers for you, new faces, new information, lot of new knowledge sharing, and new topics. Thank you for this week. Take care of your health. Bye bye.